السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے استقبال کیا جاتا ہے NNA نیوز چینل پر۔ آج کی تازہ ترین خبر: تم مڑ تو پاؤ گے پر لوٹ نہ پاؤ گے، تم مڑ تو پاؤ گے پر لوٹ نہ پاؤ گے، میری یاد آئے گی اس مقام پہ کبھی، تم پکڑ کے گاڑی شاید میرے گاؤں آؤ گے، تم پکڑ کے گاڑی شاید میرے گاؤں آؤ گے، میں ملوں گا ہی نہیں اس مکان پہ کبھی، تم زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھلائے نہیں بھولتی۔ ان میں سر فہرست بچپن اور بچپن کی عیدیں۔ یہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی اپنے گاؤں میں عید منانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہنچتے ہیں، اپنے یار دوستوں سے ملتے ہیں، پرانی باتیں اور یادیں پھر ایک مرتبہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ عید بھی کیا چیز ہے، نام خوشی کا لیا جاتا ہے اور یاد بچھڑنے والے آتے ہیں۔ ایسے میں ہم نے سوچا کہ چلو اب کے سال گاؤں میں عید مناتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے مرحوم بھائی نئے کپڑے پہن کر ہمارا ہاتھ تھامے ہمیں مرشد درگاہ کے قریب موجود عیدگاہ لے جاتے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے بھیا ان کے دوستوں سے گلے ملتے ہوئے انہیں مبارکباد دیتے تھے۔ ہمارے دوستوں کا حلقہ الگ تھا۔ وحید اللہ جو ان دنوں نووا ڈائگنوسٹک سینٹر کا مالک ہے، صابر جو جوتے کی دکان کھولے بیٹھا ہے، دیگر ساتھیوں کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ ہمیں تو اب بھی وہ گزرا زمانہ یاد آتا ہے، تمہیں بھی کیا کبھی کوئی دیوانہ یاد آتا ہے۔ عید تو گزر گئی، لیکن ہمیں ایک دکھ بھری خبر یہ سننے کو ملی کہ ہمارے مرحوم بھائی ڈاکٹر محمد عبدالسلیم کے عزیز دوست سید عبدالنصیر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی موت کی اہم وجہ قلب پر حملہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تاہم ہم نے چاند رات کو رخت سفر باندھا۔ شہر کے چاند رات کی بدت کو تو آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا، پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ مہنگائی کا واویلا کرنے والی قوم چاند رات کو گھر میں رہنا گناہ تصور کرتی ہے۔ خواتین کی اکثریت اپنے سجنے سنورنے کی چیزیں اسی رات خریدنا ضروری سمجھتی ہیں۔ اس رات بازار میں انسانوں کا جم غفیر ہوتا ہے۔ اس مخلوط ہجوم میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کندھا کس کا ہے اور ہاتھ کس کا، پاؤں کے اوپر کس کا پاؤں آیا اور دھکا دینے والا کون تھا۔ یہ شہر کا منظر ہے تو میں آپ کو گاؤں کا بازار دکھاتا ہوں۔ شوہر بیچارے گاؤں کے ہوں یا شہر کے، دونوں کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے، البتہ بازار الگ ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ خود کو سیانے سمجھتے ہیں، جو اپنی جیب اور جان میں طاقت رکھتے ہیں وہ شہروں میں جا کر خریدی کرتے ہیں، اور گاؤں میں اوسط طبقے کے لوگ یمجی روڈ پر کپڑے کی دکانوں میں نظر آ جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت جو سرکس کے شیر تھے، بازار سے واپسی پر فوج کے خچر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی خریدے ہوئے سامان اور بچوں کی بار برداری کے کام آتے ہیں۔ گاؤں میں بھی چاند رات منائی جاتی ہے، دکانوں کو سجایا جاتا ہے، غریبوں کے تجسس کو بھڑکایا جاتا ہے اور بازاروں میں آنے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ اس رات شوہر ایک ہی چکر میں ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ شریک حیات کی ذرا سی فرمائش پر ہانپ جانا ان کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے، اور یہ سن کر تو شوہروں کی روح فنا ہونے لگتی ہے۔ عید کی شاپنگ کا معاملہ شہروں کی طرح ہمارے گاؤں میں ایک مکمل فیسٹیول یا سرکس کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے سڑکوں پر بندر کا تماشا تو دیکھا ہی ہوگا۔ مداری کہتا ہے بیوی سے جھگڑا کیسے کرے گا، اس پر بندر جھگڑا کر کے دکھاتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بیوی کو کیسے منائے گا، اب بندر خالص انسانی انداز سے بندریا کے پیر دباتے ہوئے اسے مناتا ہے۔ آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ سسرال کب جائے گا،
तो बंदर एकाएक अपनी बंदरिया के पीछे पीछे सर झुकाए चलता दिखाई देता है। ईद की शॉपिंग के लिए शहर से निकलते हुए बेशतर जोड़े कुछ कुछ ऐसा ही मंजर पेश करते हैं। बीवी की शॉपिंग करने की रफ्तार और शौहरों की फुर्ती दीदनी होती है, जो खरीदे हुए सामान के डब्बे और बच्चों को संभाल कर तकरीबन कूदने के अंदाज से बीवियों को फॉलो कर रहे होते हैं। ये मनाजिर देखकर अब लोगों को रिवायती सर्कस की कमी महसूस नहीं होती। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो हमने अपने दोस्तों के साथ अब की मर्तबा तांडूर में मौजूद ईदगाह चंगेजपुर रोड पहुंचे, जहां नमाज के बाद हमारे दोस्त जो नंबर 1 स्कूल से पढ़कर तांडूर में मौजूद वाहिद जूनियर कॉलेज, जहां 7वीं जमात से इंटरमीडिएट तक पढ़ने का निज़ाम था, दाखिल हो गया। हम नंबर 2 स्कूल के तालिब इल्म थे, ताहम इंटर की तालीम भी हमने इसी कॉलेज में हासिल की। आज हमारे दोस्त मुनीर को देखकर मुझे खुशी हुई, जो इत्तेफाक से सहाफ़ी है। तांडूर की ज़मीन को समेट समेट कर कहीं ना कहीं से वो खबरें निकाल कर लोगों के सामने लाने में माहिर है। हम दोनों बगलगीर हुए। सैयद वहीदुल्लाह से भी मुलाकात हुई। बरसों बाद हुई इस मुलाकात के बाद हमने इन्हीं के घर पहुंचकर शीर खुरमा और बिरयानी खाई और सीधे अपनी वालिदा माजिदा और वालिद माजिद की खबर पर फूल चढ़ाकर उनके लिए दुआ की और पुराने दोस्तों से मिलने उनकी दुकानों पर पहुंचे। उनकी जानिब से सारे आलम को ईद की मुबारकबाद देने के लिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहले चलते हैं जिंदगी होटल में। काली पीली चाय बनाने वाले मियाँ भाई की होटल में जब मैं पहुंचा तो उन्होंने खुशी से अपनी बाहें फैलाईं और कहा, मुबारक हो, हमारी चाय का एक ही कप आपके लिए काफ़ी है। अब पता नहीं कि इससे उनकी मुराद कहीं हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं थी। दरअसल इस होटल का नाम हमारे दोस्त मुस्तफ़ा, जमील और आसिफ ने जिंदगी होटल रख दिया था, जहां दिन भर की आवारागर्दी करने के बाद हम चारों जमा होकर चाय की चुस्कियां लेते थे। इसके शामों का काम तो ढलना है, ढलेंगी तब भी। हवाओं का काम तो चलना है, चलेंगी तब भी। जुल्फों की तो ये फितरत है, उड़ेंगी तब भी। कोई और सवारेगा तो भी मेरी याद आएगी। तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। दिल की बात आएगी ना जबान पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। इसके बाद जब मैं खान साहब की कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, कौम की तमाम माँ, बहन और बेटियों को ईद की मुबारकबाद। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मर्द हजरात उनके खरीदारों में शामिल नहीं, लिहाजा मुबारकबादी में भी उन्हें शामिल करने की वो जहमत गवारा नहीं करते। उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के कपड़े दस्तयाब रहते हैं। उनका ख़ास तौर पर तांडूर वालों के लिए पैगाम है कि इस ईद को खरीदिए और अगली ईद तक पहनिए। यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ खा खा सुपारी, छी छी सौंफ सुपारी, थू थू पान मसाला बनाने वाले शरीफ भाई के पास, जो कौम को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। उनका पैगाम है कि जो एक बार खा खा छा लिया, छी छी सौंफ सुपारी और थू थू पान मसाला खाए और फिर जिंदगी भर कुछ न खाए, क्योंकि ये सब खा खा कर मुंह और हलक के जानलेवा अमराज से बच जाएगा तो कुछ खाएगा ना। जरा आगे जाने के बाद तेरी बीड़ी मेरी बीड़ी सबकी बीड़ी शाही बीड़ी बनाने वाले सबील भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने बीड़ी नोशों और फरोशों तक ईद की धुआंधार मुबारकबाद अवाम को पेश की और पैगाम दिया कि लगे दम मिटे गम। बिल्कुल दुरुस्त, दम होगा तो गम होगा ना। वैसे तो इनका पैगाम खास तौर पर नौजवानान मिल्लत के लिए है, अलबत्ता दीगर दरमियानी, अधेड़ उम्र, पक्की उम्र, गई गुजरी उम्र और आखिरी उम्र के लोग भी कान धर लें
तो इफाका होने की कभी उम्मीद है। हमारे एक और दोस्त हैं जिनका बीड़ी बनाने का कारखाना है, लेकिन वो अब हमारी तरह शहर की उसतों में गुम हो गया है। मेरे दीगर दोस्तों में मसूद, राजकुमार, शिवा, लिंगम, आसिफ, फारूक साइकिल वाला, शिवा पत्थर वाला, जावेद चूड़ी वाला, बुलबुल यानी जलील ठेला बंडी वाला, अंधा अनवर जो अब किसी काम का नहीं रहा। ये लोग ज्यादा मसरूफ रहने वाले लोग हैं। इनसे मुलाकात ना हो सकी। अगली ईद तक जिंदगी रही तो फिर यहीं पर ईद मनाते हुए उनसे जरूर मुलाकात होगी। लेकिन एक आखिरी शख्स से मैं आपको मिलाता हूँ जो लाश मार का ताबूत बनाने वाला मलिकुल मौत एंड कंपनी का मालिक है। सरकारी दवाखाने से आगे जाने के बाद इसका मकान है और इसी मकान में वो ताबूत बनाता है। वो भी आप सबको ईद मुबारक कह रहा है, जिसका नाम शकूर है। तमाम जीने मरने वालों और जिंदा दरगोरों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जुमला अक़साम के मुर्दों के लिए हमारे पास मजबूत और पायदार ताबूत बनाए जाते हैं। देश भर से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। मुसलमानों पर बीजेपी सरकार और दहशत पसंदों की जानिब से हमले किए जाने के बाद अमवात और तलब और रसद में तेजी के साथ बढ़ते हुए तफावत को मद्देनजर रखकर मैं अवाम से अपील करता हूं कि वो अपने साइज के ताबूतों की पेशगी बुकिंग करवा लें ताकि पसमानदगान को परेशानियों से बचाया जा सके। वहीं हमें कई सियासी कायदीन मिले जिन्होंने अपने महकूमीन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क भर में अवाम को मसाइल की भरमार ज़रूर है, लेकिन वो अपने हुक्मरानों के अजीम इक़दामात के सबब हासिल होने वाली इस ईद सईद के मौके को खूब इंजॉय कर रहे हैं और आने वाले मज़ीद सख्त तरीन वक्त की बेपनाह सख्तियों के लिए ख़ुद को असर नो तैयार कर रहे हैं और अपने हुक्मरानों की अवामी पॉलिसियों, अवाम दोस्त टैक्स, सैलाब टैक्स, आंसू टैक्स, आह टैक्स, सांस टैक्स, खांसी टैक्स, शादी टैक्स, बच्चा टैक्स, तालीम टैक्स, खाना टैक्स, पीना टैक्स, यूं ही टैक्स, बीमारी टैक्स और मर्ग टैक्स, साथ ही बुनियादी ज़रूरियात की अदम दस्तियाबी और गिरानी को फरामोश करते हुए टैक्स दिए जा रहे हैं। एक ही पार्टी को जिताए भी जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जो वोट वो दे रहे हैं वो किसके हक में जा रहा है। ताहम दोस्तों, गाँव में आज भी जिंदगी की शाम 10 बजे हो जाती है, लेकिन नफरत की आग जिसे मोदी ने फैलाया है उससे अब गाँव भी महरूम ना रहे। यहाँ के दोस्त भी अब ज़ाफ़रानी ज़बान बोल रहे हैं। आने वाले दिन कैसे होंगे इसका पता नहीं, लेकिन हालात दिन ब दिन गैर यकीनी होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो था एक बहाना अपने और आपके दिल पर पड़े किसी नामालूम बोझ को हल्का करने का, और अब आप सब अपने अपने दिलों पर हाथ रखिए और कहिए कि हुआ ना कुछ तो दिल का बोझ हल्का। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत यही है कि हम सब ईद सादगी से मनाएं। शॉपिंग जैसी खबीर रस्म को अपनी ज़िंदगी से तड़ी पार कर दें। मामले को ख्वाब तक रहने दें, ताबीर के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अजीबुल खलकत ख्वाबों को ताबीर का जामा पहनाना सिर्फ हुक्मरानों के बस की बात है, और ख़ास तौर पर वो जिन्हें अपने ख़ानदानों का पता नहीं। हम और आप जैसे गरीबों के पास सरकारी ख़जाना तो है नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर खरीद कर सुर्खरो होते फिरें। तांडूर के सभी अफराद को ईद मुबारक। उम्मीद है कि अगले साल फिर मुलाकात होगी। शब्द हैं, दर्द है, कलाकारी है, गीत बना लूंगा। उन गीतों की कीमत भारी है, मैं कमा लूंगा। ओ तेरा नाम न लूंगा, खुददारी है, मैं छुपा लूंगा। कोई गुनगुनाएगा तो तुम समझ ही जाओगे। तुम पैसे ओदों पर इतराना पाओगे। तुम पैसे ओदों पर इतराना पाओगे। इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी।